Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444 2371 7106, and our third dedicated line is 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashiam, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. Good evening, Harsh. गुड इवनिंग, नमस्कार। हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे। आज दिन शनिवार का, और आज के दिन श्रोता हमसे चाहें तो सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं और बिजनेस, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट से संबंधित आपके कोई सवाल हों, बेहिचक हमसे पूछें। 3 टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर हैं 23 31 44 44, 23 717 106 और 23 42 1050। तीनों नंबर दिल्ली के एसटीडी लाइन्स। इसके पहले 011 कोड जरूर लगाएं। और जी हां, जैसा कि आप पूरा इंतजार कर रहे होंगे हमारे एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट वही हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। थैंक यू हर्ष, थैंक यू रंगा, सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। शुरू करते हैं हेडलाइंस अंग्रेजी में। Well, the top stories. GST Council decides to reduce tax rates on ethyl alcohol supplied for blending with petrol. Also decriminalizes certain offences. Raksha Mantri Rajnath Singh says government committed to increasing the defence production target to $22 billion by the year 2025. And on the Wall Street, the Dow declines 0.9% on fears of economy tilting into recession. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी। कुछ गड़बड़ियों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पादों का लक्ष्य वर्तमान के $12 अरब से बढ़ाकर $22 अरब करने के लिए प्रतिबद्ध। और अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स 0.9% फिसला, आर्थिक मंदी का डर बढ़ा। Market Mantra. And now for all the details, GST Council has decided to reduce the tax rates on ethyl alcohol from 18 to 5% supplied to refineries for blending with motor spirit or petrol. This will further promote efforts on blending and reduce dependence on imported crude and save foreign exchange. The decisions have been taken by the 48th GST Council meeting under the chairmanship of Finance Minister Nirmala Sitharaman in New Delhi. The GST Council also decided to reduce the tax rate on husk of pulses, including chilka, from 5 to 0%. The Council has also agreed to decriminalize certain offences and increase the minimum threshold limit for launching prosecution of tax defined under the GST law. The limit has been doubled from 1 crore to 2 crore rupees other than fake invoices. The offences which were recommended to be decriminalized include obstruction of preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence and failure to supply the information. Briefing media after the GST Council meeting, Ms. Sitharaman said the GST Council could not discuss taxation on tobacco and gutka. She said setting up of GST tribunal was also not discussed in the meeting. और आज के हमारे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अमित हैं दिल्ली से। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछ लें आप शरद जी से। सर नमस्कार। सर नमस्कार अमित।
मेरा सवाल है कि सर मैं आईटी क्षेत्र में 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पे 3 लाख रुपए हैं, तो मैं एकदम से डाल दूं कि शिप में डालूं? और मेटल और आईटी 10 से 12 साल के लिए कैसे रहेंगे? क्या क्षेत्र भी चुन लूं मैं? 3 लाख रुपए है मेरे पास सर। जी देखिए अमित, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है और आजकल उसमें थोड़ी सी करेक्शन भी आई है, जिसके कारण से स्टॉक्स विद इन रीच भी हो गए। पीछे उनका कीमतें बहुत चढ़ गई थी, कोविड के दौरान हमने देखा। मुझे लगता है अच्छा विचार है, क्योंकि आप लंबे वक्त के लिए डालना चाहते हैं। दूसरा, आपने मेटल सेक्टर के लिए कहा, मेटल सेक्टर पर भी मेरी उम्मीदें अच्छी हैं। अब सवाल उठता है कि आप एक साथ डालें या आप किस्तों में डालें। देखिए, मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूं कि जब जब डिप आए तब तब आप उसको लीजिए, जब जब मार्केट करेक्शन में जाता है। और हो सकता है हम इस साल के एंड में या अगले साल में कोई बड़ा करेक्शन देखें, पर उससे भी अच्छी मेरे को मैं ये सलाह आपको देना चाहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के रास्ते, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो मेटल सेक्टर पे फोकस्ड हैं, आईटी पर फोकस्ड हैं, आईटीईएस पर फोकस्ड हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी एंटर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड को कंसिडर करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहें, तो संडे को मेरे ख्याल हमारा डेडिकेटेड प्रोग्राम म्यूचुअल फंड्स पे होता है, जहां पर एक्सपर्ट्स आते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड के नाम भी बताएंगे। पर एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, अगर आप सीधा शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, तो आप जब जब करेक्शन आए लीजिए। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा अमित जी, जो आपके लिए नहीं सभी श्रोताओं के लिए है, कि कंपनीज का चयन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसकी आप ईपीएस निकालिए, उसकी पीई निकालिए, उसकी बुक वैल्यू निकालिए, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या पोजीशनिंग है, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है। इस सबको हम, क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं, इस सबको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस कर तब आप आगे बढ़िए, तो आपका निवेश अवश्य सफल होगा और 10 साल में बहुत अच्छा आपको इसमें लाभ होगा। Well, let's move on and take our next caller. We are joined by Ravindra from Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. Yes, Ravindra, do we have you online? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं आरडी के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, उसे एफडी में लगाना चाहता हूँ सर। जी, तो सर जो है अभी जो है बैंकों के रेट बढ़ रहे हैं, तो अभी इंतजार करना चाहिए कि कितने तक और बढ़ेंगे या लगाना चाहिए? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है रविंद्र जी। बहुत सारे जो बैंक में एफडी में निवेश करते हैं, उनके मन में आजकल ये प्रश्न घूम रहा है। देखिए रविंद्र जी, एफडी कोई शेयर मार्केट नहीं है कि इसमें अभी और बढ़ेंगे तो हम और लगाएं। मुझे लग रहा है ये सही समय है एफडी का। जो आजकल इंटरेस्ट रेट है, बहुत से बैंक तो मुझे सुनने में आया 7.5%, 7.5 पौने 8 तक दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ये रेट 50 बेसिस पॉइंट और भी ज्यादा होता है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप एफडी में फौरन लगाएं। और एक सलाह मैं और आपको देना चाहूंगा रविंदर जी, वो ये है कि आप इसको एक ही बैंक में ना लगाएं, आप इसको 2-3 बैंक में, मुझे नहीं पता कितनी राशि आप लगाना चाहते हैं, पर इसको 2-3 अलग अलग, एक आप सरकारी क्षेत्र का बैंक चुने, एक आप निजी क्षेत्र का जो एस्टैब्लिश पुराने बैंक है उनको चुने, हम यहां नाम नहीं लेते हैं, और तीसरा आप आजकल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक आए हैं वो भी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। और उसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी, या मुझे नहीं मालूम, शायद आपको पता हो कि वहां पर ब्याज की दरें औरों से बेहतर है। मुझे तो बल्कि एक बैंक का, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं, वो बैंक 5 लाख से ऊपर सेविंग्स अकाउंट पे 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो वहां तो मुझे कोई शख्स मिले वो कहते हैं मुझे तो एफडी करने की जरूरत ही नहीं है, सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, वही 7% आता रहता है, फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी आप निकालें डालें, आपको ऑनलाइन पेमेंट भी वहां से करते हैं, और कभी भी आप उसको और उस पर तो टीडीएस, सेविंग्स अकाउंट का आपको पता होगा टीडीएस भी नहीं कटता है। तो ऐसे तो इस 2-3 बैंकों में इसको स्प्रेड करके रविंदर जी लगाएं, बिल्कुल सही समय है, अभी एंट्री लीजिए। आगे दरें बढ़ी तो एक और मैं चीज बता देता हूं, एक रेपो लिंक डिपॉजिट होता है। रेपो लिंक डिपॉजिट क्या होता है कि जब जब रेपो रेट बढ़ेगा, क्योंकि आगे उम्मीद की जा रही है शायद आरबीआई थोड़ा बहुत और बढ़ाए, हालांकि महंगाई अब नियंत्रण में आ गई है काफी हद तक, पर अभी और शायद अगर बढ़ाते हैं तो वो रेपो से लिंक होता है कि अगर रेट आरबीआई बढ़ाएगा तो आपके एफडी पर भी रेट बढ़ जाएगा, घटाएगा तो घट जाएगा। पर मुझे लग रहा है आगे बहुत ज्यादा रेट ऊपर जाने की उम्मीद शायद अब कम नजर आ रही है, क्योंकि जो महंगाई का आंकड़ा 5.88% आया, वो इस बात का सूचक है कि शायद अब की बार आरबीआई का थोड़ा सा नरम रुख होगा ब्याज बढ़ाने के पीछे। तो अभी आप करिए, अभी अच्छा रेट है और खूब इंटरेस्ट कमाइए, हम तो यही चाहेंगे जी। शशि भूषण अगले कॉलर हैं दिल्ली से। शशि, सवाल पूछ लें आप।
कौन बोल रहा हूँ। जी जी, पूछ लें, सवाल पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। जी जी सर, ये अभी बैंक के सारे काम कंप्यूटराइज होते हैं, पासबुक पर एंट्री भी कंप्यूटराइज होती है। जी मेरा अकाउंट पीपीएफ अकाउंट मैंने खुलवाया है जी उसमें जब भी मैं सर एंट्री कराने जाता हूँ तो हाथ से एंट्री करते हैं। जी तो मैं ये जानना चाह रहा था, इस सदी में भी हाथ से एंट्री हो रही है तो क्या मतलब है? उनसे कई बार कहा तुम ट्रायल क्यों नहीं करते, बोले नहीं पीपीएफ अकाउंट में हाथ में होता है। जी देखिए शशि भूषण जी, आपने ठीक कहा कि ज्यादातर बैंक सीबीएस सिस्टम के अंतर्गत आ गए हैं, पर अभी भी कुछ एक बैंक्स हैं या जो रूरल एरियाज में है जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जहां पर अभी भी पूरी तरह से वो ब्रांच कंप्यूटराइज्ड नहीं है। तो हो सकता है आप जिस क्षेत्र में जाते हो या जिस पोस्ट ऑफिस की बैंक की ब्रांच में जाते हो वहां पर अभी कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध ना हो, इसलिए उनको हाथ से करना पड़ रहा है। कई दफे ऐसा भी होता है कि उनके सिस्टम्स डाउन होते हैं, तो एटलीस्ट जब आप ग्राहक आया है चल के, तो बजाय इनके कि उसको वापस भेज दिया जाए तो हम कम से कम आपको हाथ से एंट्री करके भेज देते हैं। पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस बात को जो वहां के मैनेजर है उनके साथ जाके मिले, और अगर कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये सही नहीं है। उसके लिए आजकल आपको पता होगा रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन एक स्कीम निकली हुई है, जिसके अंतर्गत आप रिजर्व बैंक में कोई भी बैंकिंग संबंधी दिक्कत हो उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो अगर जानबूझकर कोई आलस के पीछे या किसी और कारण से कोई बैंक का अफसरान या क्लर्क ऐसे बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है उसके बिल्कुल आपको उसकी एक दफे बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी ये मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि मैं जानता हूं ऐसी कुछ ब्रांचेस को जहां पर कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से नहीं है या उनका वो कंप्यूटर बदलना मांगता है, वो सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम डाउन है, कोई तकनीकी कारणों से ऐसा हो रहा होगा। पर आप इस पर थोड़ी गहराई में जाइए, तहकीकात करिए, हमें बताइएगा कि असल में कारण क्या निकला, उसके बाद फिर मैं आपको और रास्ता बताऊंगा। Right, let's take our next caller, and the next caller joins us from Mumbai. We have Ashish. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening to all. I just wanted to ask Mr. Kohli about this US Fed की जो कमेंट्री होती है, कभी तो ठीक ठाक बोलते हैं, फिर सडनली ऐसा क्या होता है किस टोन में चले जाते हैं, मतलब उनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो वो बेस्ड ऑन दैट कि वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट डाउन होते हैं। तो hawkish and dovish comments are always there. Yeah, I think Ashish has very rightly asked the question because he's right, because on one fine week you find the Fed chairperson Mr. Jerome Powell sounding very optimistic, and suddenly when he gave the commentary last week when the Fed rates were increased by 50 basis points, we found that he was sounding a bit hawkish, and before that he was trying to sound dovish. But then, yes, you are right, Ashish. I think this is not dependent, Ashish, on the moods and sentiments of the Fed or Fed chairperson. This is dependent on the economic parameters. Some of the parameters I can mention to you. How has the retail sale data been? How has the jobless claims been? What has been the GDP growth? What has been the inflation above all everything else? On top of that is inflation. So I think as it sees, and we should also not forget, Ashish, one of the reasons why he sounds like this is, I'm saying he because he's the one who's giving most of the commentary. Obviously you have the state Fed heads also who give the commentary. But then I think the situation is also, Ashish, very dynamic at this point of time. We should not forget that there is a geopolitical stress which still exists in the world. Only yesterday we heard again aggression happening in the Russian-Ukraine conflict. And there are so many other factors. There's a price cap on crude oil. There are cartels being found out of oil. So many things are happening around the world. So things are very dynamic. So I think that is what is making Mr. Powell, sounding like a pendulum, from this way to that way, as you say. But it is completely dependent on economic parameters and data point, which is why he sounds the way he sounds. But you're right, the market plays to the tune. There's a very old poem I read in my school. It's called Pied Piper of Hamelin. And you're right, your question reminds me of Pied Piper of Hamelin. रत्नाकर हमारे अगले कॉलर होंगे मुंबई से। स्वागत आपका रत्नाकर, सवाल पूछें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शरद जी फिर आ गए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा रत्नाकर जी आपके साथ फिर से जुड़ के। बहुत बेचैनी थी मुझे आपसे ज्यादा थी जी। या प्लीज गो अहेड, पुट योर क्वेश्चन। दो सवाल है कि आरबीआई ने कुछ कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टी लगाई है जी, तो इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखने का है क्या, नहीं रखना है? और दूसरा सवाल है कि विंडफॉल में फिर एक बार कटौती हो गई जी,
न्यूज में आया है कि डीजल एटीएफ निर्यात जो करते हैं जी के ऊपर कर भार यानी टैक्स का हल्का हो गया कर भार। तो इसका मीनिंग क्या है? हम वेदर वी आर रियली एक्सपोर्टिंग डीजल एंड एटीएफ। अच्छा चलिए ठीक है। आपका पहला सवाल था रत्नाकर जी के कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना चाहिए कि नहीं। देखिए कोऑपरेटिव बैंक, आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेगुलेट करता है, सोसाइटीज एक्ट जिसको हम कहते हैं, शायद बहुत पुराना है, वो 1860 कहीं बना था, वही तभी से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये बैंक बनते हैं और ये पुराने बहुत पहले से ये बैंक चल रहे हैं। कुछ एक बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर यह बात भी एक कड़वा सच है कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक में समस्या आई, लोगों के पैसे फंसे, कुछ डूबने की भी खबरें आई। आरबीआई ने इस बात का संज्ञान लिया। और दूसरे कैटेगरी के बैंक्स होते हैं रत्नाकर जी, जिसको हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत कहते हैं, जिसमें आप निजी क्षेत्र के जो बैंक है, सरकारी क्षेत्र के बैंक है, ये सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आते हैं। और ये सच है कि जो मैंने दूसरी कैटेगरी बताई, इनकी जवाबदेही आरबीआई के प्रति कहीं ज्यादा होती है, ये कहीं ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं, कहीं ज्यादा मॉनिटर्ड होते हैं बनस्पत कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो क्योंकि थोड़ा सा इनकी रेगुलेशन इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत है, पर अब आरबीआई को जैसे जैसे ये संज्ञान में आ रहा है तो आरबीआई इनके लिए भी रेगुलेशंस टाइट कर रहा है। अगर आपके पास चॉइस है रत्नाकर जी, मैं किसी कोऑपरेटिव या किसी कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ नहीं हूं, पर अगर आपके पास चॉइस है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक्स आते हैं उनमें अगर आपके पास चॉइस है तो आप उनमें निवेश करें बजाय कोऑपरेटिव बैंक के, जब तक इनकी परिस्थिति पूरी तरह से सुधर नहीं जाती। दूसरा आपने विंडफॉल टैक्स का पूछा। विंडफॉल टैक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, जब रेट बहुत बढ़ते हैं क्रूड के उस समय सरकार ये टैक्स लगाया था क्योंकि उन लोगों को एक एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा था। अब जैसे जैसे जब हमने देखा कि रेट $80 से भी एक दफे तो नीचे चले गए थे, $75 तक चले गए थे, तो इसको रिवर्स कर गया। पर हुआ क्या कि जब सरकार ने इसको रिवर्स करने का डिसीजन लिया है तो क्रूड ऑयल की प्राइस फिर ऊपर को चढ़ने लग गई है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में विंडफॉल टैक्स कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी लग रहा है। कुल मिलाकर ये टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है कि जब अचानक मुनाफा हो रहा है किसी कंपनी को तो उसको सरकार के साथ उसका टैक्स का भार उसको सरकार को देना चाहिए और सरकार के साथ भी शेयर करना चाहिए, जो कि देश के विकास में उपयोग होता है। एक्सपोर्ट जो किया जाता है यहां पर रत्नाकर जी, वो हम उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं। क्रूड आता है यहां पर, रिफाइनिंग सर्विसेज एक तरह से दी जाती है, उसको वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की जरूरत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट भी ऑयल में भारत में होता है। Right. Let's move on and take our next caller. We have Dev joining us from Noida in Uttar Pradesh. Good evening, Dev, and welcome to the program. नमस्कार शरद जी को मेरा नमस्कार जी। शरद जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ कंपनियां जब अपना रिजल्ट अनाउंस करती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, 70% उनका हाई जो ना ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छा जो ना रिजल्ट देती हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में जब उसमें जो है ना दूसरे दिन हम देखते हैं तो वो शेयर का भाव गिरने लगता है, तो वो बात समझ में नहीं आती एक तो। और दूसरा है कि मुझे कैश फ्लो के बारे में और जरा बताइए, ये कैश फ्लो को हम कैसे रीड करें। मैंने टिकट ऐप में जाकर के देखता हूँ तो कैश फ्लो में जो ना कुछ माइनस में जाते हैं, कुछ प्लस में होते हैं, तो वो जरा उसको और बताइए प्लीज। जी देव, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये बहुत सारे लोगों के मन में रंगा और हर्ष ये सवाल होता है कि ये कैसे होता है कि इतने अच्छे रिजल्ट निकाले इन्होंने, 70% कहा, मैंने तो यहां तक देखा है डबल प्रॉफिट हो गया, डबल हो गया। तो देव जी, इसके पीछे जो मिस्ट्री है, जो राज है, वो मैं आपको बता देता हूं। मार्केट, शेयर मार्केट जो है वो बहुत आगे की सोच के चलती है। तो जब क्या होता है कि रिजल्ट्स आने से पहले एक उनके अनुमान आते हैं, कंपनी खुद ही देती है। ऐसा मुझे एक बार ये भी सवाल आया था मार्केट मंत्रा में कि ये अनुमान पहले से कैसे पता लग जाता है। कोई जादू नहीं है, कंपनी का जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस सेक्शन है वो अलग अलग मीडिया को और इसको इशारा दे देता है कि हमारे इस बार उम्मीद है कि बेटर रहेगा। तो उसके बेसिस पे क्या होता है देव, के मार्केट उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो आप देखते होंगे जब रिजल्ट आने वाला होता है तो नॉर्मली उसके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और हैरानी जब होती है जब रिजल्ट बढ़िया आया तो उसके बाद बिल्कुल ठीक देव जी ने कहा कि अगले दिन रिजल्ट, क्योंकि मार्केट पहले से उसको पचा लेता है और जब पचा लेता है, जब रिजल्ट आता है तो फिर उसमें आगे देखने के लिए कुछ रह नहीं जाता, तो उसको ऑफलोड लोग करना शुरू कर देते हैं। दूसरा आपने पूछा कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जो है ये बताता है कि कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी स्ट्रांग है। अगर कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं, कई दफा क्या होता है कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, पर कैश के लिए वो तरस रही है, उसको दिक्कत आ रही है, स्ट्रिंजेंसी जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है देव जी कि जब कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा है प्रॉफिट के साथ और सेल्स के साथ,
तो उस कंपनी को बाकी कंपनियों की तुलना में हेल्दी माना जाता है, क्योंकि वो कंपनी को कल को कोई एक्विजिशन करनी है, उनको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, उनको लोन रीपेमेंट करनी है, उनको डिविडेंड देना है, इस सब के लिए उसको आसानी रहती है। तो इसलिए कैश फ्लो अगर अच्छा है तो उसको आप फंडामेंटल एनालिसिस में एक अच्छा मापदंड मान सकते हैं, परंतु खाली कैश फ्लो ही देखकर आप निर्णय नहीं ले सकते, आपको सारी चीजें एक साथ मिला के देखनी पड़ेगी। जी जय सलूजा हैं हमारे अगले कॉलर। सलूजा जी नमस्कार, सवाल पूछ लें। To Sharad ji and the Market Mantra team. First of all, I have to congratulate Sharad ji, because this is the question that I had put, that how the results of the companies is now. Yeah. To my question. Yeah. Then is that it has been observed in the last 1 month or even 2 months, the PSU bank stocks have risen up quite dramatically. Yeah. So, but the reason is that the government has also taken quite good steps. Yeah. In your opinion, how long this will continue? Will it continue for a year or more? And your experts' opinion on the general market, sir. Thank you. Mr. Saluja, you very rightly observe. I mean, you are a very keen observer of the market. And yes, the PSU banks have been doing reasonably well. They were supposed to be laggard stocks. They were supposed to be stocks which hardly moved. They used to stand still. लोग कहते थे कि इनको जम गए तो इनकी प्राइस ही नहीं हिलती वगैरह वगैरह. But yes, you are right. I mean, the balance sheets of these banks, Mr. Saluja, you would be surprised, have significantly improved. Government created NARL, National Asset Reconstruction Limited, which was in a slang language called bad bank. So I think a lot of assets of some of the banks are being moved to, on a selective basis, to the asset reconstruction. Plus, government has also written off about 10 lakh crores of loan. Now, the writing off, I think people mistake it that the government has forgotten about that debt. No, writing off does not mean, it's an accounting process. It does not mean that the carwai being done on the lender is also surrendered. That's not the case. I mean, the recovery proceedings continue. So I think that has also cleansed the balance sheet. To answer your question very precisely, it has cleansed the balance sheets of these banks. So obviously, when the fundamentals of the bank become strong, the balance sheet looks healthier, cleaner, and very progressive. So I think that is what has led to the rally which you've seen in public sector stocks, public sector bank stocks. I think as far as your question is concerned, that what is the future of these stocks, I would say now you have to take a microscope. See which of these banks still have the capacity. I'll tell you the parameters. See which bank has a book value which is lesser than the average book value of the bank stocks. Which of these have got a EPS which is still lower than that. I think you catch that. Which of the stock has got a PE multiple which is still lower than the normal market. So I think these are the criteria which you choose. So you'll have to be selective. I think if the banking rally continues, you will see PSU banks selectively remaining in action. The future of the market, as I said, is dependent. He's asked a very general question also, which may so therefore I'll take the liberty of answering that, although I may be snatching away the time from some other caller. But then because this is important, yes, I think the future of the market is, as of now, the Fed has just increased the rates. So I think typically past experience says that market takes a while to digest that. And you see these knee-jerk reactions. We've seen the market in the last 2 days. The Nifty has almost dropped 450 points. So, but then eventually, I think, as they say, market also has a short memory. So it moves on. And then you might see the rally coming back in the times to come. Fingers crossed. There should be no negative news coming. The geopolitical situation also has turned little unfavorable in the last week. So with all these factors, we used to study economics. There was a concept called ceteris paribus. Paribus, they used to call it. So what does that mean is that other things remain constant. I think you will see another rally, but then fingers crossed. Let's see how it goes in the times to come. और अनिल गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले हम बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार साल 2025 तक रक्षा उत्पादों का लक्ष्य वर्तमान के $12 अरब से बढ़ाकर $22 अरब करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि आने वाले वर्षों में वे अनुमान लगा सकते हैं कि उनके लिए विकास की कितनी संभावनाएं खुलने वाली हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने रक्षा पूंजी का एक हिस्सा घरेलू खरीद के लिए आरक्षित करके रखा हुआ है। रक्षा मंत्री ने भारतीय उद्योगों, विदेशी OEM से रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील की ताकि अनुसंधान और विकास के जरिए नई तकनीक विकसित करने में आसानी हो। और अब हमारे पास अनिल जी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अनिल, आपका स्वागत है। जल्दी से सवाल पूछ लें, वक्त अब कम बचा है। सर,
सर मैं थोड़ा सा ना उसने पूछा था कि पीपीएफ अकाउंट में जो मैनुअल करते हैं, सर मैं दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। 2002 में हमारे घर में 7 पीपीएफ का फ्रॉड ये हुआ था कि वो मैनुअली जीपीओ में पोस्ट ऑफिस में ले जाता था और पैसे जमा करके पासबुक में दिखा देता था, फिर स्टैंप लगा देता था, इवन कमीशन तक भी देता था। और 2003 में जब स्कैम, अनिल जी समझ आ गया, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। बिल्कुल आप छाछ को फूकिए, आप ठीक फूक रहे हैं छाछ को, मैं आपके साथ पूरा आपके विचारों से सहमत हूं। बिल्कुल मैंने आपको रास्ता भी बताया था, आप रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम में कंप्लेंट करिए। आपको कहीं अगर अंदेशा नजर आ रहा है, कहीं दाल में अगर कुछ काला काला नजर आ रहा है, बिल्कुल आप तुरंत मैनेजर से मिलिए, आरबी इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन में कंप्लेंट डालिए और इस मुद्दे की तहकीकात करिए, गहराई में जाइए, हमें बताइएगा। मैंने तो आपको अगली बार बताने को कहा था, आपने तो आज ही दोबारा कनेक्ट हो गए जी। Right, let's go across to the US markets. On Wall Street, key indices dropped for a third straight session and suffered a second straight week of losses yesterday as fears continued to mount that the Federal Reserve's campaign to arrest inflation would tilt the economy into a recession. Further comments from the other Fed officials also fueled concern. New York Fed President John Williams yesterday said it remains possible that the US Central Bank will raise interest more than it expects next year. For the week, the Dow lost 1.7%, the S&P slipped 2.1%, and the Nasdaq plunged 2.7%. In economic news, a report showed US business activity contracted further in December as new orders slumped to their lowest level in just over 2.5 years, although easing demand helped cool inflation. भारत भूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। भारत जी, सवाल पूछ लें आप। जी नमस्कार सभी को, सर को भी नमस्कार है। नमस्कार भारत भूषण सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने आज घोषणा करी है कि 2025 तक हमारा जो रक्षा उत्पाद का निर्यात है 12 अरब डॉलर से बढ़ के 20 अरब डॉलर तक हो जाएगा सर जी। तो इसमें हमारे निजी क्षेत्र के उपक्रम की कितनी भागीदारी रहेगी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की उत्पादन में कितने % भागीदारी रहेगी? और दूसरी सर, तो एथनॉल पे जो 18% से घटा के 5% कर दिया गया है जीएसटी, मेरे हिसाब से 0 कर देना चाहिए। ये इसलिए सर कि चलिए भारत भूषण जी, समय कम है तो मैं बहुत संक्षेप में आपका आज उत्तर दे पाऊंगा। आप नॉर्मली शुरू में पूछते हैं, आज आपने आखिर में पूछा है। देखिए, ये अभी इसमें परसेंटेज डिसाइड तो नहीं की जा सकती कि निजी क्षेत्र का कितना रहेगा और सरकारी, क्योंकि सरकारी क्षेत्र की भी बहुत सारी कंपनीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, बहुत सारी सरकारी क्षेत्र की कंपनियां, इसी प्रकार निजी भी बहुत सारी है। फिलहाल निजी क्षेत्र की कंपनियां जो भारी इक्विपमेंट है वो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं, जो छोटा इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इनोवेशन ड्रिवन है, वो निजी क्षेत्र की कर रही है। तो अब ये तो समय बताएगा। अब कुल मिला के भारत भूषण जी, निजी हो या सरकारी हो, सवाल तो ये है कि भारत एक समय जब डिफेंस का इंपोर्टर होता था, आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे लिए बहुत सराहनीय बात है, हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाना चाहिए सोच के कि हम डिफेंस के एक्सपोर्टर बन गए। तो दूसरा एक और कुछ पूछा था, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ भारत भूषण जी, समय कम है, अगली बार पूछेगा अपना बाकी का हिस्सा, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। वी हैव शंकर जॉइनिंग अस ऑनलाइन फ्रॉम भोपाल, बट आई एम अफ्रेड वी वोंट बी एबल टू टेक हिज कॉल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। और आज के सारे श्रोतागण जो हमसे जुड़े, आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही खास तौर पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शरद कोहली साहब का, जो आए, जिन्होंने वक्त निकाला और आपके सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी क्लोज, अ क्विक लुक एट द टॉप स्टोरीज। GST Council decides to reduce tax rates on ethyl alcohol supplied for blending with petrol. Also decriminalizes certain offences. Raksha Mantri Rajnath Singh says government committed to increasing the defence production target to $22 billion by the year 2025. And on the Wall Street, the Dow declined 0.9% on fears of economy tilting into recession. वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% किया। कुछ गड़बड़ियों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार वर्ष 2025 तक रक्षा उत्पादों का लक्ष्य वर्तमान के $12 अरब से बढ़ाकर $22 अरब करने के लिए प्रतिबद्ध। और अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स 0.9% फिसला, आर्थिक मंदी का डर बढ़ा। Well, that's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Have a wonderful weekend. Goodbye. Thank you. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.